Hi everyone. The topic of this concept video is Dimensions of Physical Quantities. I am Shreya Sharma, undergraduate IIT Delhi. And the chapter we are going to study is Units and Dimensions, Class 11 Physics. Dimensions of Physical Quantities. All the physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental or base quantities. सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज बेस एज बेस क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन, मतलब जितनी भी डिराइव्ड चीजें होती डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम बेस यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. Dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस जो होती हैं वो बेसिकली पावर होती हैं जिससे हम बेस क्वांटिटीज को रेज करते हैं ताकि हमें वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मिल सके. In this type of representation, the magnitudes are not considered. इस representation में magnitudes consider नहीं की जाते जब हम dimensions की बात करते हैं क्योंकि हम सिर्फ units की बात कर रहे हैं. It is the quality of the type of physical quantity that enters. Dimension सिर्फ तब matter dimension तब vary करती है जब physical quantity itself vary करती है. Magnitude vary कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, but dimension तभी vary करती है जब physical quantity हम change कर देते हैं. There's a change in velocity, initial velocity, average velocity, final velocity and speed are all equivalent in the context. Therefore, velocity है, change in velocity है, initial velocity है, average velocity है, final velocity है, speed है, इन सबका एक ही dimension होगी क्योंकि physical quantity एक है velocity and velocity and speed are almost same. अगर देखा जाए तो magnitude wise वो same होते हैं, therefore उनके dimensions भी same होंगी. It does not matter कि कौन सी तरह की velocity है, कौन सी तरह की speed है. For example, the volume occupied by an object is expressed as a product of length, breadth and height or three lengths. Hence the dimensions of volume are L cube. अब जो volume होती है जो ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की है वो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट के बराबर होती है, हमें पता है. और लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इन तीनों की जो डायमेंशन है वो लेंथ ही होती है. देयरफॉर जो हम क्यूब की वॉल्यूम के डायमेंशन हम L इंटू एल इंटू एल क्यूब के बराबर लिख सकते हैं. ये L क्यूब डायमेंशन है वॉल्यूम की. Dimensional formula and dimensional equations. The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of the physical quantity. जो एक्सप्रेशन में बताते हैं जो एक्सप्रेशन हमें बताते हैं कि कैसे हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का. For example, the dimensional formula of volume is m0 L cube T0 and that of speed or velocity is m0 L T minus 1. For example, dimensional formula जो volume का होता है वो m to the power 0 L cube T to the power 0 होता है और velocity का m की power 0 L की power 1 and T की power minus 1 के equal होता है. Basically डिनोट क्या कर रहे हैं कि जो velocity मास पे डिपेंड ही नहीं करती, लेंथ पे वो फर्स्ट पावर से डिपेंड करती है और टाइम पे वो -1 की पावर इनवर्सली डिपेंड करती है. An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation of the physical quantity. एक इक्वेशन जो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट करने से मिलती है उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. Thus, the dimensional equations are the equations which represent the dimensions of physical quantity in terms of base quantities. तो मतलब dimensional equations वो equations होती हैं जो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को बेस क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करती है. Dimensional equation can be obtained from the equation representing the relation between the physical quantities. अब dimensional equation जो होती है वो हम एक नॉर्मल रिलेशन है किन्हीं फिजिकल क्वांटिटी से उससे निकाल सकते हैं. The dimensional equation of volume V and dimensional equation of velocity can be written as V m0 L cube T0 and small v is m0 L T minus 1 respectively. यहाँ पे ये पूरी जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये डायमेंशनल इक्वेशन है और सिर्फ ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड है सॉरी वो डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम का. Dimensional analysis and its application. A thorough understanding of dimensional analysis helps us in deducing certain relationships among different physical quantities and checking the derivation, accuracy and dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expressions. अगर हमें डायमेंशनल एनालिसिस बहुत जगह हेल्प आउट करते हैं, जैसे हमें कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप निकालना है या फिर कोई एक डेरिवेशन की एक्यूरेसी
चेक करनी है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, the unit should be treated in same manner as ordinary algebraic symbols. जब हम दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनकी यूनिट्स जो होते हैं उनको हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रिक सिंबल्स को ट्रीट करते हैं। जैसे मास को हम एक क्वांटिटी एक अलजेब्रिक सिंबल मान लें और हम में मास की पावर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वैसे ही। We can cancel identical units in numerator and denominator. The physical quantities represented by symbols on both sides of mathematical equation must have the same dimension. जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं वैसे ही अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं तो हम ऊपर नीचे से उसके यूनिट्स को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर मास है नीचे मास हम दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से। अब फिजिकल क्वांटिटीज एक इक्वेशन में फिजिकल क्वांटिटीज जो एलएचएस पे होती है और आरएचएस पे होती है उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए हमेशा, तभी वो मैथमेटिकली और फिजिकली वैलिड इक्वेशन मानी जाती है। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है वो डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The magnitudes of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions. हम दो मैग्नीट्यूड्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होती हैं, यानी कि वो सेम डायमेंशंस है उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की। Thus, velocity cannot be added to force or an electric current cannot be subtracted from the thermodynamic temperature. The simple principle called the principle of homogeneity of dimensions. तो हम velocity को simply फोर्स में ऐड नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को टेम्परेचर में ऐड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम वेलोसिटी को डिस्टेंस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डायमेंशन अलग है। वेलोसिटी की डायमेंशन मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड होती है, डिस्टेंस की सिर्फ मीटर होती है, तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट द सेम, द इक्वेशन इज रॉन्ग। अगर सारी टर्म्स जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनकी डायमेंशन सेम नहीं है किसी एक इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन ही गलत है, उसको हमें फिर से चेक करने की जरूरत है। If we derive an equation of speed, the dimension on both the sides of equation and simplified must be of length per unit time or LT minus 1. अगर हमने मान लिया कि इक्वेशन डिराइव की जो हमें स्पीड दे रही है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि LHS और RHS में दोनों जगह जो डायमेंशंस हैं फाइनल वो सिंप्लीफाई करके लेंथ पर यूनिट टाइम में ही आए। Dimensions are customarily used as a preliminary test of the consistency of equation when there is some doubt about the correctness of the equation. अब मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है, हमें डाउट है कि सही है कि गलत है, तो हम फर्स्ट टेस्ट सबसे आसान टेस्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज से वो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, उस इक्वेशन को उसके करेक्टनेस को प्रूव कर सकते हैं। बट अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इट डज नॉट गारंटी कि वो इक्वेशन भी करेक्ट होगी। जरूरी नहीं है हमने मैथ्स में प्लस माइनस कर दिया वो गलती हो सकती है, तो हमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एक बार आ गई उसके बाद हमें और उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस इक्वेशन को। बट अगर डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डायमेंशनली ही इनकरेक्ट आई वो इक्वेशन तो वो इक्वेशन गलत ही है। द आर्गुमेंट्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब जो आर्गुमेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के वो डायमेंशनलेस होने चाहिए, यानी प्योर नंबर होने चाहिए। A pure number ratio of similar physical quantities such as angle as the ratio of length by length, refractive index as the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium, etc. has no dimension. A pure number वो नंबर होते हैं जो बेसिकली एक रेशियो होती है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की, ये वो उन फिजिकल क्वांटिटीज की जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं। जैसे हमने एंगल ले लिया, एंगल रेशियो होती है लेंथ अपॉन लेंथ की, जैसे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होती है स्पीड अपॉन स्पीड की, तो ऊपर से LT माइनस वन नीचे से LT माइनस वन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्योर नंबर है और प्योर नंबर की डायमेंशंस नहीं होती कोई भी। टेस्टिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करके देखते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x equals to x naught plus v naught t plus half at square for the distance x traveled by a particular body in time t which starts from position x naught with an initial velocity v at time t equals to 0 and has uniform v naught as uniform acceleration a along the direction of motion. अब जो पार्टिकल है इसका एट एनी इंस्टेंट डिस्टेंस x है, इनिशियली वो x नॉट पे था, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे शुरू हो रहा है और v नॉट जो है
वी नॉट जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ए एक्सेलरेशन है, एंड टी किसी भी इंस्टेंट पे जो टाइम है हुआ है वो। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म हम कैलकुलेट करते हैं। आप एलएचएस में देखें तो सिर्फ एक्स है, उसकी तो एल ही है। डायमेंशन एक्स नॉट की भी एल है। वी नॉट टी की एल टी माइनस वन इंटू टी एल ही है, और हाफ ए टी स्क्वायर की हाफ तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि प्योर नंबर है। ए एल टी माइनस टू इंटू टी टू ए भी एल है, तो इन सारी टर्म्स की जो डायमेंशन है वो एल के इक्वल आ रही है। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट फिजिकली करेक्ट है या नहीं है ये हमें और एक्सपेरिमेंट से, मैकेनिक्स से पता चलता है वो हमें। As each term on right hand side of this equation has same dimension, namely that of length, which is same as that of dimension of left hand side of the equation, hence this equation is dimensionally correct equation. Sample problem देखते हैं। Let us consider an equation. एक equation है half mv square equals to mgh. ये LHS पे kinetic energy और RHS पे potential energy है, where m is the mass of body, v is the velocity, g is acceleration due to gravity, and h is height. Check whether this equation is dimensionally correct or not. अब डायमेंशन हम LHS के निकालें तो हाफ तो एक कांस्टेंट है, तो ये कुछ भी डायमेंशन में फर्क नहीं डालेगा। m मास है और वेलोसिटी एल टी माइनस वन का स्क्वायर है, इक्वल्स टू मास इनटू, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो m एल टू टी माइनस टू के इक्वल आ गया। अब डायमेंशन ऑफ आरएचएस निकालेंगे तो m से आ गया, g एक्सेलरेशन होती है तो एल टी माइनस टू, और h हाइट लेंथ है तो l। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो m एल टू टी टू। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS की डायमेंशन सेम है, हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि LHS एंड RHS इक्वल है। डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल एनालिसिस का एक और एप्लीकेशन है कि हम 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम में रिलेशनशिप निकालेंगे। सपोज कर लिया हमने कि फोर्स e की पावर e टू द पावर a इंटू v टू द पावर b इंटू t टू द पावर c से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, where f is force, e is energy, v is velocity and m is mass and t is time। हमने a b c को फाइंड करना है। हमें पता है कि इन सब की डायमेंशंस क्या होती है, हम एक बार लिख लेते हैं। फोर्स की ml t माइनस टू, एनर्जी की ml टू t माइनस टू, एंड वेलोसिटी की l t माइनस वन। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस द डायमेंशन ऑफ RHS एंड LHS शुड बी इक्वल। डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग LHS एंड, अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो LHS एंड RHS के डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया, पुट कर दी वैल्यूज डायमेंशन की इस इक्वेशन में। तो f टू द पावर 1 था, e टू द पावर a कर दिया, v टू द पावर b कर दिया, t टू द पावर c कर दिया। इसको हमने ओपन कर दिया फिर बाद में मर्ज कर दिया, तो m टू द पावर a हो गया, l टू द पावर 2a प्लस b हो गया, एंड t टू द पावर माइनस 2a माइनस b प्लस c हो गया। इनको इक्वेट कर देंगे अगर हम तो a 1 के इक्वल आ जाएगा। m को इक्वेट करेंगे LHS और RHS के। अगर लेंथ को इक्वेट करेंगे तो 2a प्लस b 1 के बराबर हो गया, और टाइम को इक्वेट करेंगे तो माइनस 2a माइनस b प्लस c माइनस 2 के बराबर हो गया। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 1 आ गई, c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। Therefore f equals to e upon vt। तो हमारे पास f e vt में एक रिलेशनशिप आ गया सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस करने से ही। तो ये एक और एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की। So that is all for this video. Thank you so much.